پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک، جلالی، خوبصورت اور مبارک ترین نام میں آج شب پھر خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور ممنون ہوں خداوند کا کہ آج پھر یہ لمحات بونس کے طور پر مجھے ملے ہیں کہ خداوند کے حضور جھک کر اس پرستش کے وسیلہ سے جو ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی گئی اور اس کلام کے وسیلہ سے جو ابھی میں شیئر کرنے کو ہوں، میں برکت پانے والا ہو سکوں۔ آپ کی دعاؤں کے لیے جو میرے لیے کی گئی اور کرتے ہیں، میں دل سے آپ کا ممنون ہوں اور ہمیشہ اس بات میں آپ کا قرضدار رہوں گا۔ آج کے دن ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 144 زبور کا ہم نے آغاز کیا۔ ایک خدا کی خادمہ اور خداوند کے ایک خادم نے 144 زبور کی پہلی 4 آیات پر بات کی ہے۔ میں آگے بڑھوں گا، لیکن تھوڑا سا پس منظر بتاتے ہوئے، داؤد اس زبور کے انسانی مصنف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی روحانی بھی اور جسمانی جنگیں بھی لڑی ہے۔ داؤد کے مخالفین بھی بہت ہوئے، ایون اپنے گھر کے لوگ، ساؤل بادشاہ جیسے، فلسطی، جاتی جولیت، ابلیس، اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ داؤد کے دشمن بھی بڑے تھے، داؤد نے جنگیں بھی بہت لڑی، خون بھی بہت بہایا، پاپ بھی ہوئے، لیکن ایک اہم ترین بات داؤد کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، بہت ساری باتوں میں سے ایک، کہ وہ خدا کے ساتھ بہت ہی ہانسٹ اور دیانتدار تھے۔ اپنے پاپوں کا اقرار کرنے میں اپنے آپ کو خدا کے حضور کھلی کتاب کی مانند رکھ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اپنی سچویشن کو، اپنے حالات کو، کہ میں کن حالات میں ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو زبور 18 ہے، وہ زبور بھی بعین لفظ بلفظ تو نہیں، لیکن تھاٹس اور مرکزی خیالات کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے زبور 144۔ بعد میں آپ کو وقت ملے، اتفاق ہو، تو آپ ضرور زبور 18 کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان بہت ساری ایک باتوں میں سے یہ کہ داؤد خدا کے ساتھ ہانسٹ اور دیانتدار رہے، اور ان تمام مشکل اوقات میں، لمحات میں، جنگوں میں داؤد یہوہ خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری کمک خداوند ہی سے آتی ہے۔
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यहां पर मेरे लिए और आपके लिए भी एक बहुत जबरदस्त सबक है। शायद मैं और आप ना तो दाऊद के मुकाम पर हैं, जिस मुकाम पर फिजिकली उस जमाने में खुदा ने दाऊद को रखा, क्योंकि खुदा ने दाऊद से मुताल्लिक यह कहा कि यह मेरे दिल के मुवाफिक है। और नंबर 2, अगरचे उस तरह की मुखालफतों का सामना जो दाऊद को उस वक्त दरपेश थी, आज मुझे और आपको करना तो नहीं पड़ रहा। ना कोई बादशाह, ना कोई फौज और कौमें, और ना ही अपने घर के लोग उस तरह की मुखालफत में हमारे बरखिलाफ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हकीकत और एक सच्चाई हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है कि अगरचे इस तरह से नहीं है, लेकिन मेरे और आपके बरखिलाफ कदीम से चला आने वाला एक दुश्मन जरूर खड़ा है। और यूं हमारी जिस्म के खिलाफ जंग जारी रहती है, हर रोज मेरी जारी रहती है, आपके बारे में आप बेहतर जानते हैं। और इंसानी ख्वाहिशात के बरखिलाफ जंग जारी रहती है। कुछ और मुखालफतों के सबब से भी जंग जारी रहती है। जिंदगी में कई ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स और रुकावटें खड़ी होती हैं। और जितने भी खुदा के लोग, क्या दाऊद और क्या दीगर रहे हैं और आज भी हैं, उनकी फिजिकली मुखालफतें तो होती ही रही हैं, लेकिन वो रूहानी तौर पर कई तरह की जंगों में मुब्तला रहे हैं। और शायद आज मेरे साथ इस वक्त जितने भी हम ऑनलाइन इस फेलोशिप में हैं कि हम खुदा की आवाज को सुन सकें, हम अगर फिजिकली नहीं तो रूहानी तौर पर किसी न किसी जंग में जरूर मुब्तला है और वो जंग लड़ रहे हैं। खा वो जिस्म के खिलाफ है, खा वो हमारी अपनी ख्वाहिशों की जंग है, खा दूसरों की तरफ से मुखालफतों की और जेलसी की रूह की, खा इकोनॉमिकली या खानदानी तौर पर पॉसिबल है टेंशन्स की जंग, मियां बीवी में नाचाकी और गलत फहमी की जंग, शायद औलाद का उस तौर पर जिस तौर पर हम चाहते हैं उस मयार तक ना होना। सोचें, शायद ऐसी आ जाती है खुदा के लोग होने के बावजूद कि हम फिक्रमंद होते हैं, और बाज़ औकात हमारी रात की नींदें हराम हो जाती और चाट हो जाती है। दाऊद की जिंदगी से मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत असबाक मिलते हैं, और वो ये कि दाऊद की जंग ज्यादातर फिजिकल थी और स्पिरिचुअल भी। शायद मैं और आप भी आज कई तरह की रूहानी जंगों में मुब्तला हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता और आप मेरे बारे में इतना नहीं जानते जितना मैं लड़ता हूं। लेकिन एक बात जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी है
कि जब दुआ करें, जब भी दुआ के लिए बैठें, जो भी आपका अपॉइंटेड टाइम है कि जिसमें बैठकर खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, तो मेरे लिए भी आज ये एक नया सबक है कि क्यों ना दुआ में हम इस ज़बूर को, लंबा नहीं है, सिर्फ 15 आयात हैं, और अपनी दुआ में इस ज़बूर को पढ़ें। ये भी एक दुआ है, ये भी एक इल्तिजा है खुदावंद के हुजूर। और इससे एक तो हमें दुआ करने का और ज्यादा ढंग मिलेगा, और दूसरा हमें रूहानी ख्याल मिलेंगे कि हम अपनी दुआ को किस तौर पर मजीद अपडेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा ताकि मेरी बेहतर तौर पर मदद हो सके। मैं ज़बूर 144 की बात करता हूं। हमने आयत 1 में खुदावंद की खादमा के जरिया से देखा था कि मेरी तरबियत करने वाला, जो इस आयत में आज भी हम देखते हैं, दाऊद जानते थे कि मेरी तरबियत करने वाला मेरा खुदावंद है, मेरा खुदावंद है। ये दुआ के दौरान वो ये कह रहे थे, और उसके नाम को वो मुबारक कहते हैं। आयत 2 में हमने देखा कि दौरान जंग खुदावंद मेरा मुहाफिज है और मेरी सिपर और मेरी ढाल भी है। और फिर आयत 3 और 4 में हमने इन हकाइक को देखा है कि इंसान की हैसियत क्या है कि खुदा उस पर निगाह करे। कुछ भी तो नहीं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इन तमाम हालात में बुजुर्ग दाऊद खुदावंद को पुकारते हैं और कहते हैं, इंसान की जिंदगी, इंसान बुतलान है, महज धोखा, और उसके दिन ढलते साए की मानिद है। आज मैं आयत 5 पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा, जहां पर बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं, ऐ खुदावंद यहोवा, आसमानों को झुकाकर उतरा, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। और आयत 6, बिजली गिराकर उनको प्रागंदा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। जब हम पहली 4 आयात को देखते हैं, तो इन 4 आयात में दाऊद खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, और ये कहते हैं कि किस कदर वो अजीम है, उसकी तारीफ करते हैं, और बयान करते हैं कि वो किस कदर भला खुदा है, हमें प्रोटेक्ट करने वाला और हमारी हिफाजत करने वाला। और अब 5वीं आयत में यूं लगता है कि जैसे वो अब अपना पांसा पलट रहे हैं, और जो दुश्मनाने दाऊद थे, गैर कौमों की बात हो रही है, फिजिकली मुखालिफीन की, जो उनकी जिंदगी में रुकावटों का सबब थे, उनके लिए इस 5वीं आयत में इल्तिजा करते हैं खुदा के हुजूर। लेकिन एक बात और जो यहां पर हमें मिलती है, वो ये है कि चूंकि ये मज़ामीर वो गीत हैं जो इब्रानी जबान में लिखे गए, और ये इब्रानी शायरी का उर्दू तर्जमा है, तो शायरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लासिकल होती हैं,
या मुझे यूं कहना चाहिए कि कई इमेजिनेशन, तस्वीर, अलामात और तशबीहात पेश की जाती हैं हकीकत को पेश करने के लिए। और दाऊद इतनी मसरूफ शख्सियत, नबी भी, बादशाह भी, शायर भी, मौसीकार भी, जंगों को लड़ने वाली शख्सियत, मुखालिफीन का सामना करने वाली शख्सियत, इन तमाम हालात और सिचुएशंस और मसरूफियात के बावजूद खुदा दाऊद की जिंदगी में अव्वल दर्जा रखते थे। खुदावंद खुदा, यहां वह पाक खुदा की बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। और फिर हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है। आप कहते हैं ए यहोवा, ए खुदा, आसमानों को झुका कर उतर आ। खुदावन से दरखास्त की जाती है कि ए खुदावन, अब आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। लगता है जबूर नवीस अपने आप को तनहा पा रहे थे। दाऊद की बात कर रहा, और वो ये कह रहे थे, ऐ खुदावन, इस तरह की सिचुएशन में जिसमें मैं मुब्तला हूं, आप कूद पड़े, आप मदाखलत करें, आप मेरी मदद करें, चूंकि आप अजीम हैं, मुझे तरबियत देने वाले हैं, मेरे मुहाफिज हैं, मेरी कुमक हैं। आप इस वक्त मेरी मदद करें। और क्या ही खूबसूरत बात है, सबक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि जब हम मुश्किल औकात और लम्हात से गुजरते हैं तो बजाय इसके कि कौन किसको बुलाऊं, कौन आए मेरी मदद के लिए, किससे कहूं, कौन मेरी मदद कर सकता है, क्या ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, नमूना है कि हम आलमे बाला की तरफ देखें। क्योंकि जो खुदावंद खुदा हमारे लिए कर सकते हैं वो बशर नहीं कर सकता। हम इंसानों की मदद के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन सबसे बढ़कर खुदावंद की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रायोरिटी और अवलियत खुदावंद को देंगे तो फिर खुदावंद बजाते खुद ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो हमारी मुआवनत कर सकें और मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे सकें। यह बड़ी अहम बात है। और फिर वो ये कहते हैं कि आसमानों को झुका और उतरा। कई उलमा इस बात का इशारा मसीह खुदावंद की तरफ भी करते हैं। खुदावंद उतरा, और जो अर्श वाला था वो अर्श से दाऊद के तकरीबन लगभग 1000 साल बाद वो उस अर्श से इस फर्श पर उतर आया, मसीह यसु में। यह एक दूसरे एंगल से नबुवती रूह में बात करते हुए यह बात समझने की है। लेकिन उस वक्त दाऊद का मतलब नबुवती रूह में बात तो हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त अपने मुखालिफीन, अपने दुश्मनों के तहस नहस हो जाने के लिए खुदा को पुकार रहे हैं। खुदावंद खुदा, आप उतर आइए। और फिर पहाड़ों को छू
तो उनसे धुआं उठेगा, पहाड़ों को छू ऐ यहोवा, और उन पहाड़ों से धुआं उठेगा। और पॉसिबल है कि दाऊद के जहन में यह काहे सीना की तरफ इशारा हुआ हो, क्योंकि दाऊद ने उस वक्त कोहे सीना पर से जो कुछ कोहे सीना पर हुआ उसके ताल्लुक से इस वक्त दाऊद उसको याद करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी कुमक और मेरी मदद वहां से मेरी तरफ आए। शायद वो कोहे सीना के तजर्बा की बात कर रहे थे। जब मैंने पहले भी कहा कि ज़बूर 18 एक ऐसा ज़बूर है जिसमें बहुत सारी इस तरह की तफासील और इस तरह की डिटेल मिलती है। मिसाल के तौर पर जब मैं ज़बूर 18 की 18 आयत से देखता हूं, बल्कि या 14 आयत से, तो यहां पर बहुत कुछ है। एक तो 9 आयत से भी देख लीजिए, जहां पर लिखा है उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। ये सीना के तजर्बा की बात हो रही है। और वो करोबियों पर सवार होकर आया। फिर आयत 13 में भी, और खुदावन आसमान में गरजा, हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। और फिर आयत 16 और 17, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत जबरदस्त थे। और मजीद इस ज़बूर 18 में बहुत सी बातें हैं जो 144 ज़बूर की इस आयत 5 और 6 2 आयात से मिलती जुलती हमें नजर आती हैं। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि शायद दाऊद के जहन में वो जो कोहे सीना का तजर्बा था, इस वक्त दाऊद के जहन में वो आ रहा था। और वो क्या था? जब मैं खरूज की किताब और इसका 19 बाब देखता हूं और इसकी 16वीं आयत से, यहां पर क्या लिखा है? जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजे और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदाबंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। यूं 22 आयत तक यह सिलसिला चलता है। लेकिन सदाकत इस बात की है कि दाऊद तौरात की किताब से भी और असलाफ के साथ, बुजुर्गान इसराइल के साथ खुदा का जो तजर्बा था उससे भी वो खूब अच्छी तरह से वाकिफ थे। इवन यसाया 64 की 1 में भी, ज़बूर 104 की 32 में भी, ज़करिया 4 की 7 में भी, यर्मिया 51 की 25 में भी हम इन बातों को ऐसे ही देखते हैं जिस तौर पर दाऊद ने
यहां पर बात की 5वीं और 6ठी आयत में कि पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा और फिर बिजली गिराकर उनको प्रागंदा कर दे, यानी तहस नहस। चूंकि मैं पहाड़ों में पैदा हुआ, अक्सर मैं ये बात कहता हूं, और उन इलाकों में जंगलात भी हैं और दरख्त भी बहुत ज्यादा थे, एटलीस्ट जब मैं छोटा था तो। और जब कभी मौसम बरसात होता तो कड़क चमक के साथ बारिश होती और बिजली, जैसे लिखा है ना, पूरब से पश्चिम तक कूद कर जाती है, वैसे ही आसमान से जमीन तक वो आती और कई दरख्तों को वो अपनी लपेट में ले लेती और उनको फाड़ देती, कई हैवानात को भी और बाज औकात इंसानों को भी। इसलिए लोग ऐसे खौफनाक मंजर में अपने घरों में रहते थे और यह कुछ देर के लिए यूं कड़क चमक के साथ बारिश होती थी। तो दाऊद इन तमाम तजर्बात से वाकिफ थे, अपने खुदा की कुदरत से भी वो वाकिफ थे, और वो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि खुदाबंद उतर आइए, इन पहाड़ों से धुआं जो उठता है उसके सबब से, चूंकि आपकी कुदरत के सबब से ऐसा हुआ, अब आप बिजली को गिराइए और इन मुखालिफीन को प्रागंदा कर दीजिए और अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दीजिए। खुदा का तीर फेंकना यह भी तशबीही और अलामती बात है कि ए खुदावन, यानी इस पूरे हिस्से में कि ए खुदावन आप मेरा साथ दीजिए और इनको बदला दीजिए जो मेरे मुखालिफीन हैं। एक दफा पहले भी मैंने दौरान तफसीर यह बात की थी कि आज हम अपने मुखालिफीन के लिए यह दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि यह बद दुआ है। हम जो मसीह के बाद के लोग हैं, हमें अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ और अपने दुश्मनों से मोहब्बत का दर्स दिया गया है। लेकिन एक बात जो यहां पर मेरे लिए और आपके लिए है, वो ये है कि हम ये दुआ तो नहीं कर सकते, ए खुदा उनको प्रागंदा कर दे, उनको शिकस्त खोरदा कर दे। इंसानों की बात कर रहा हूं, लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं, खुदावन मैं इस सिचुएशन में हूं, इस सिचुएशन में आप मेरा इंसाफ कीजिए, और अब जो खुदा को भला लगेगा वो करेंगे। हमारा दुश्मन अबलीस है, उसके खिलाफ भी जंग। इंसान मुखालिफीन हूं तो उनके खिलाफ भी हमारी रूहानी जंग है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि हम गोश्त और खून से नहीं लड़ते, बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से, अपने जिस्म से, अपनी ख्वाहिशों से। मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं, मैं हर रोज अपने आप को मुक्के मारता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि वो बॉक्सर थे और अपने आप को मारते थे, नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस्म की ख्वाहिशों पर काबू करना यह इतना आसान नहीं है। गुनाह मुझे गुनाह की तरफ माइल करता है, लेकिन मैं अपने आप को जब्त करता हूं और अपने आप को कंट्रोल में रखता हूं कि मैं ऐसा ना करूं। और रसूल आजम होने की हैसियत से वो ये अपने आप की बाबत गवाही देते हैं
तो फिर मेरे लिए और आपके लिए कितना ज्यादा और बड़ा मौका है कि हम अपनी जंग जो हम लड़ रहे हैं, इसके कैप्टन को, कमांडर को मौका दें कि खुदावन आप आइए और इन तमाम हालात और इन तमाम सिचुएशंस में मेरी मदद कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए कि मैं क्या करूं। दाऊद बेदीन लोगों के लिए वो गज़बे इलाही की इल्तिजा करते हैं। मुझे और आपको बेदीन लोगों की निजात के लिए काम करने की, यानी उनके पास जाकर खुशखबरी सुनाने की तालीम दी जा रही है। और लाजिम है कि हम अपने आप के साथ भी और खुदा के हुजूर भी बड़े रास्त होकर चलने वाले हों, और इस रूहानी जंग में हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, क्योंकि वही हमारे हाथों को, उंगलियों को जंग करना सिखाते हैं, और खुदावंद ही हमें जब्त और कंट्रोल, अपने मुंह पर लगाम देने के लिए और दूसरों के खिलाफ हाथ न उठाने के लिए हमें तरगीब दे सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए लाजिम है कि हम खुदावंद से अपने लिए फजल मांगें। जिस्मानी जंग की बात नहीं है, रूहानी जंग की बात है, और इस रूहानी जंग में हम अपने आप को फुली खुदावंद अपने खुदा के पाक और मुकद्दस हाथों में सौंपने वाले हूं। ये बातें मेरे लिए भी और आपके लिए भी बड़ी अहम तरीन हैसियत रखती है। मेरे अजीजों, आइए इन दो आयात और इस जबूर के पस मंजर के मुताबिक हम अपने आप पर सोचें और देखें कि अब मुझे आगे क्या करना है। सिर्फ ये नहीं कि आज मुझे कौन सा ख्याल मिला है, मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। अच्छी बात है कि हम इस सोच को लेकर इबादत में शरीक हूं, ऑनलाइन मीटिंग्स में, लेकिन सबसे बढ़कर ये, ऐ खुदावन, इस ख्याल और इस सोच के मुताबिक मेरे लिए क्या है, और मुझे यूं आप उस कलाम की फर्माबरदारी में ले चलिए जो आप चाहते हैं। और जब तक हम इस कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा नहीं पहनाएंगे, मेरा इबादत में शरीक होने से कुछ भी नहीं बनेगा। लाजिम है कि हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हों। खुदावंद आज के कलाम के मुवाफिक मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ मैं आपके साथ मिलकर करना चाहूंगा। ऐ खुदावंद, हम उन तमाम इंसानों के लिए जो मुखालिफ और कीना वर हैं, दुआ करते हैं कि उनकी आंखों को खोल दीजिए ताकि वो आपकी मोहब्बत को पहचान सकें। और दुआ करता हूं कि हमारे दिलों में, सोचों में एक ऐसा इनकलाब पैदा कीजिए कि हम दूसरों को मुआफ करने वाले हों और मुआफी तलब करने वाले हों। और मिन्नत करता हूं खुदावन, हमें अपनी जिंदगी में जो मुखालफतें और जंगें हैं, उनमें आपको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा और प्रायोरिटी देने वाले हो, ताकि आप हमें फजल बख्शें कि आज के कलाम में दी गई इन रूहानी ख्यालात और सोचों को हम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो। खुदावंद, मुझ समेत जितने भी मेरे नाजरीन और सामईन
मुख्तलिफ चैनल्स पर आज इस कलाम को सुनते हैं, उनके लिए आपकी भारी बरकत तलब करता हूं। हम सबको अपनी फर्मा बरदारी में ले चलिए और हर आड़े वक्त में आपको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देने का फजल अनायत फरमाइए। वो तमाम जो ऑनलाइन अपनी दुआया दरखास्तें रकम कर रहे, उनके लिए आपकी बरकत और सलामती का तालिब होता हूं। बीमारों को शिफा बख्शिए और लाचारों को आप कुव्वत दीजिए। टेंशन्स और परेशानी और मायूसियों में गिरफ्तार भाइयों, बहनों और खानदानों को आप अपनी तरफ से रिहाई, तसल्ली और इत्मीनान अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदावंद के जलाली और पुरफजल नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज।